हम लोग का हाउ डू लुक एट इट प्रोग्रेसिंग? किस आएगी हम लोग, या कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अभी? अब आना तो पड़ेगा। आपकी घंटी बजती रहे, मेरी यही दुआ है दिल से। फॉर मोदी जीरोक्स टिल नरेंद्र मोदी। मुझे पड़ोसन फिल्म का डायलॉग याद आता है महमूद साहब का, जो सोचता है वो होता नहीं, जो होता है वो सोच नहीं सकता। ये सब सब्जेक्ट्स मेरे हैं। मैं हर मंदिर जाता हूँ, हर मस्जिद जाता हूँ, कई जियारत करने निजामुद्दीन चला जाता हूँ। मेरे घर के बगल में चर्च है। मुझे जहाँ शांति मिलती है मैं ले लेता हूँ। और शांति की आड़ में तुम धंधा करोगे तो बस मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दैट इज अ प्लॉट ऑफ दैट स्टोरी। मैं वो पुराना ट्रेडिशनल पंडित नहीं हूँ, आई एम एआई इनेबल्ड पंडित। ज्योतिष क्या मुझे पता है, वास्तु मुझे पता है, बिकॉज रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है सेंचुरी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द नवीन गिरी शो। और आज हम लोग के साथ जुड़ गए हम लोग के सुपरस्टार, जो दूरदर्शन पे एक वेब सीरीज आती थी, रादर इंडिया की शायद पहली ओटीटी टाइप वेब सीरीज थी हम लोग, उनके स्टार अभिनव चतुर्वेदी नन्हे। वेलकम टू द शो अभिनव जी। Good morning, Naveen. Thank you very much. Namaskar, everyone. Thank you really for an early morning. Nothing like joining you on the morning part. I'm so excited and happy. क्यों घंटी बजी? घंटी बज गई होगी सवेरे सवेरे। तो सुबह सुबह बज ही गई भाई साहब। हम तो अर्ली राइडर, तो क्या होता है कि जल्दी उठ जाते हैं। एंड आई जस्ट सेड लास्ट टाइम वी कुड नॉट या कनेक्ट। some but anyways, having said एनीवे, that, a या nice सो happy day. tell me now the Nanhe of 1984 has grown up and is now a full-fledged man in terms of the world. How has, let's begin with, how has your family evolved from there? Well, my today is a very auspicious day. Today is my son and my daughter-in-law. My son is Ayushman Chaturvedi, playing professional football in Poland. He's the first Indian to have scored goals there and doing extremely well. It's his anniversary today, अरे, and he is बहुत बहुत traveling with. मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और वो अपनी एक 6 months की डॉटर सारा चतुर्वेदी के साथ they're traveling into the mountains in Poland somewhere क्या बात है। last evening. To them, So my दादाजी, daughter works. आज तो दादाजी ने बात करी फिर उनसे? I spoke to him yesterday, and अच्छा, my daughter is working with the media. She's working with a very big group, which I'd not like to mention here because ओके। it's better, let her bat do the talking. I'm a former Delhi cricketer myself, so I आ रहा think हूँ मैं let them. मैं 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 उस पे आ रहा हूँ। अच्छा अभिनव, टेल मी वन थिंग भाई, कि आप ये बताएं अभिनव साहब कि हाउ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज, टेल अस समथिंग अबाउट द सेट्स, द कैरेक्टर्स, एंड हाउ डिड यू लैंड अप विद द रोल ऑफ हम लोग? Okay, a very interesting question because you see, I had failed an audition prior to Hum Log about 2 years before, ओह, and it just so happened that my father was a renowned Hindi commentator, late Abhay Chaturvedi ji, जी and जी। I was playing cricket. So my first national was against Sanjay Manjrekar in CK Naidu Trophy in Ahmedabad, and then I was captain Delhi State under 19. For Delhi. And it so happened that I failed an audition prior to Hamlo, and I started investing my time into cricket, and I was bloody good with that work. Um, so I went on to play a very high degree of cricket. I went on to the Ranji camps with Vishnu Singh Bedi. And in second year of my college, St. Stephen's College, so they were looking for a person who could play cricket, who could sing songs, who was a good mimicry guy, and basically a happy-go-lucky guy. So Mr. Satish Garg, who was with Doordarshan at that time, was approached because Manohar Sham Joshi, the writer, his son was studying in the same school as I, modern school, Barakamba Road. And he perhaps went up to his father and said कि ये जो character आप लिख रहे हैं ये तो हमारे यहाँ चलता फिरता character है. So with hue and cry, I was approached and I went in audition. They asked me to sing a song. I did. I'm a decent singer, I would say. So not a trained classical singer, but I just passed off very beautifully. And rest is history.
हाँ, तो ये हम लोग की शूटिंग हुई कहाँ थी सारी? This was shot at Dhiren Brahmachari's Aparna studio in Gurgaon. अच्छा, सब Gurgaon गुड़गांव दिल्ली के आसपास ही था, मतलब गुड़गांव में। for 1984. हम्म, We used to do the rehearsals at Himachal Bhavan, but हम्म, thereafter come back and shoot. हम्म, My father was in modern school, Barakhamba Road. We हम्म, used to stay on campus. I was in second year of St. Stephen's College with my history honors uh, हम्म। as a graduate. So तो we were going. दो तीन अपने कौन से फेवरेट कैरेक्टर्स थे उस टाइम पे? देयर वाज बड़की, देयर वाज मंजली, देयर वाज लल्लू। Yeah, Lallu Bhaiya, Rajesh Puri was there, Seema Didi was there, Loveleen Mishra was there, Divya Seth was there, and of course we had Vinod Nagpal, my father, Joyshri हम्म, Arora, Sushma Sethi, Lahiri Singh ji as Dadaji. So it was a क्या very बात है। cohesive family. And our director P. Kumar Vasudev, who's also no more, is a brilliant guy, master at five हम्म, camera ओ setup. वाओ। And हम्म, we used to off one episode in about 7 to 8 hours time हम्म, because it was an setup and it was easy for us to knock it off. And the best part, Naveen Bhai, was that, all the people who were participating in Hamlog, primarily they were from theatre. हम्म, So there was just to be a proper rehearsal, a line हम्म, rehearsal, as you हम्म, would do in a theatre. And हम्म। आप जहाँ fault करोगे वहां से रुक के they will start and punch it again. सो So it was. दोस वर बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट डेज ना, एक तरीके से तो देखा जाए तो। Well, no. In fact, no. By that time, color television had come on to India because of the Asian Games in 1982, 82 and it was shot 80, 82 में Asian Games में color television आ गया था. आ गया था, याद है मुझे। India saw that part, and in हम्म, '84 it was shot on a U-matic high band. Yeah, the problem was that there were not enough buying power at that time, so there were no color televisions, but there was community televisions, या as we know. दैट इज व्हाट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज कि अभी भी इतने लोगों के पास उस टाइम पे शायद पैसे नहीं होते थे कि कलर टीवी खरीद ले। हमारे घर में ही टीवी नहीं था, दूसरे घर में हाँ, क्या करेंगे? हमारे पिताजी हाँ, पढ़ाते थे स्कूल. He was a सही है। simple teacher, हाँ। and teacher not No, paid. your father was one of India's most renowned cricket commentators. He was like a voice in every house. He was, and बहुत अच्छी तरीके से मुझे याद है। अच्छा, तो ये बताएं, हम लोग हुआ फिर सेंट स्टीवंस में, आई बिलीव यू हैड क्वाइट इंटरेस्टिंग क्लासमेट्स ऑफ योर्स। Well, yes. In the first day, I found Navjot Singh Sidhu there, sitting, and there Sandeep Dikshit, my classmate from हाँ, modern school Barakham Road, he was there. हम्म, Rajul Kulshresh there. We had RPN Singh, who became the later the Minister of State मिनिस्टर। for Home. Yeah, हम्म, Minister for Home. हम्म, We had Amrinder Chaudhary, we had Deepak Paul, who's just retired from Raw. अच्छा, We had Deepak Saha, we had Anupinder Grewal, who's become a very big Attorney General right now in Punjab. हम्म, हम्म, We had Nikhil Chaudhary, we had Atul Ranjan, and the whole class, and Lofty, our very good friend, who Bhalendra Singh, he was the BJP from Bijnor. अच्छा, So we had quite an illustrious class, and हम्म, and and and. We still stay in touch. The best part is about our batch is that we still, thanks to Kullu, we had my cousin Seema Mishra, who was a tennis player. We had Vrinda अच्छा, Grover. So we all make sure that the whole part Murlidhar Madhur comes from outside Delhi. So we हम्म, keep having these alumni reunions. Devashish हम्म, Mahanti, the cricketer from Orissa, हम्म। not the fast bowler, but the other left hand, very, very fantastic batsman. So we still make it a point that we connect as far as So our batch is concerned. Since so it's you were basically the cricketer। आपने क्रिकेट खेली सेंट स्टीवन से, और yeah. कुछ एक दो बड़े मजेदार किस्से थे जो पीजीडीएवी कॉलेज में भी आप अगेंस्ट पीजीडीएवी, व्हाट वाज दैट एपिसोड? So in my first year of college, there was this tradition that
only seniors will be play. Can I have some water if you don't mind? प्लीज प्लीज, मैं भी चाय पी रहा हूँ. So, so uh, in my first inter collegiate match, I had about 700 odd runs and about 60, 70 wickets. But I Hmm. was not made to play the first game against ARSD College. Hmm. So the person who played is a very dear friend of mine, Ajay Singh. So our head of the mathematics department said that Abhinav has to be given a chance. But Hmm. there was a fair play happening up, and um, they said कि between the semi-finals against the DAV, where we would be eventually facing Manoj Prabhakar. Hmm. So at a trial game, that whoever scores better runs on merit will certainly go and play. And I got a 112 not out against Malviya Cricket Club at Morigate grounds at Sisney क्या College, बात है. That was one of the which top made, clubs in Delhi. That was one of the I top think, clubs in Delhi. because वो उधर ना खुन्नस में खेल रहे थे, कि आज Hmm. you have to get grit, because it's just like you have to show your grit that you're there, and that is what cricket trains you with. Any sport, as a matter of fact, trains you that if you get after something, then you get after something. And uh, we played at the Hindu College ground, the semi-final match, and Naveen bhai, believe nahi karoge, Manoj was bowling bananas that day. मनोज He प्रभाकर, swing, swing. ओनली मनोज प्रभाकर, कॉलर उसके खड़े होते थे हाँ. बॉस करके, Hmm. एंड वेरी वेरी sharp, very into the stumps, and उसके ऊपर कॉमा फुल स्टॉप चल रहे हैं, एंड स्टीफन्स वो 100 for 8. Yeah. स्लेजिंग इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, मतलब वो और अच्छी अच्छी हिंदी में, हिंदी में, हाँ. तो we were at 100 for 8 when I went into bat, and a very senior journalist, Mr. Vijay Lokupalli, accounts for it, that he writes in Indian Express, and I quote, uh, uh, Stephens was 100 for 8 when Abhinav Chaturvedi went and stemmed the rot with an unbeaten 42 with two Yeah. sixes. इतना मारा था उस मैच में, but we lost the match. We lost by an innings. Hmm. It was brilliant, Hmm. and I was very, very happy that I could score against a very very fierce competition in my first intercollegiate match, which gave me a lot of confidence. The body language changes. Though we lost, it was very unfortunate. But then I went on to play the under 22 North Zone for Delhi also, and went on to attend 5 Ranji Trophy camps with none other than Vishnu Singh Bedi, Hmm. and who was there in the Ranji squad at that time. It had Chetan Chauhan sir, Mohinder Amarnath, Raman Lamba, Kirti Azad, Surinder Khanna, who won the Asia Cup for us, Sunil Walson, Maninder Singh, Rajesh Peter, Rakesh Shukla, the right arm leg spinner. Uh, it was of Gusharan Singh. It was a fantastic side, अच्छा, and our उस टाइम head उस coach, टाइम उस टाइम कोच तारिक सिन्हा भी तो थे शायद. he was with Sonnet and DAV College. But अच्छा, ठीक. the team and our team Delhi coach was Vishen Singh Devi, the legendary left arm spinner. Excellent. So tell me, after you had this cricket thing, how did you reach Bombay? Bombay कैसे जाना हुआ कि क्या वहां कैसे पहुंच गए? Yeah, yeah. So thanks to the common writer being Manohar Sham Joshi from Hum Log, he was also striving for Bunyad, and Hmm. he saw my performance in Hum Log, and of course Joshi ji was family, so he अभिनव भाई, recommended my थोड़ा name. सा हिंदी में भी बात करिए, थोड़ा सा हिंदी में. तो उन्होंने फिर रमेश सिप्पी से बात किया कि ये लड़के को लेके जाना है, और उस रोल के लिए बहुत काटम काट मची हुई थी बॉम्बे में, बिकॉज जावेद साहब, दी जावेद अख्तर साहब ने मुझे बाद में बताया कि वो कामरान रिजवी को रोल दिलवाना चाहते थे, नीतीश अच्छा. भारद्वाज को कंसिडर किया गया उस रोल के लिए, Hmm. अभी जो युधिष्ठिर बने थे उन्होंने मुझे बताया, गजेंद्र सिंह ने, कि उनको भी चूज किया गया, कहते यू आर वेरी लकी कि तुमको वो रोल मिल गया, ये अब मिल गया तो मिल कौन सी पिक्चर के लिए था? गया। बुनियाद, बुनियाद, अच्छा, बुनियाद. द द सेकंड सीरीज. सेकंड मैग्नम ओपस, या. दूरदर्शन का जो फ्लैगशिप सीरियल था बुनियाद। तो मैं बॉम्बे पहली मर्तबा गया with Ramesh Sippiji with a little finger to Bombay to and I was still not sure that I'm going to be in the part of the film industry, because I had taken my admissions in MA previous at the Delhi University in history, and Hmm. my father
always told me something very brilliant. उन्होंने बहुत अच्छी बात कहते थे कि you must finish what you start. अगर तुम कोई हम्म चीज उठाओ तो उसको खत्म करो. हम्म ये बहुत कम बोलते थे, बहुत बहुत मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, लेकिन उन्होंने कुछ बातें बहुत अच्छी बताई जो मुझे अभी तक बहुत काम आती है. इसीलिए मैं जब आपसे लॉग ऑन कर रहा था आज सुबह, मैंने कहा लेट्स गेट इट डन ऑफ आवर सिस्टम, बिकॉज टेक्निकल एब्सोल्युटली. नो कुछ हो जाए तो इट्स बेटर के आखिर अभी तो टचवुड बहुत अच्छा. मैंने भी 5 दिन आपका पीछा छोड़ा नहीं है, बिल्कुल पीछा करता रहा. हम भी आप देखिए मैं नहीं उतना उत्साहित हूँ कि हम सब कर रहे हैं. आई वाज ट्रैवलिंग, आई वाज वर्किंग विद द ऑनरेबल यस. डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह, द इंडियन, and General Upendra Dwivedi ji was also there at Prayagraj. So these are certain commitments, and the show went off very well for the Indian Army. And prior to that, I was traveling to Orcha with Raja Bundela on Ram Mahotsav. So basically, anchoring shows and doing one serial called Pratibadh in Mumbai, which is directed by Siddharth Nagar. Uh, This is Dr. Ashla Nagar's son, where I'm playing an IPS officer, and a feature film called Panditji, directed by Ashok Tyagi, made by Mara Studios. Okay. Acha, I'll ask you a few questions, rapid fire type. How was it from uh, anchoring for Modi Xerox till Narendra Modi? How has your journey been there from Modi Xerox to Narendra Modi? Yeah, the common factors. Sorry, the birds are chirping loud because नहीं नहीं, कोई बात नहीं. last night it rained very heavily हाँ. in Delhi. So actually, see, theater is the base note because it prepares you to do all sorts of things Can you around shut the the bend. window? Can you shut the window? Shut. It's all open. Okay. It can't It's be. all open. Okay. That you have to. अच्छा, You ठीक है. bear with this nature. I get to do. So so as if people listen to me. तो क्या है हाँ कि जी. उसमें क्या कि एक थिएटर आपको तैयार करता है कि आप अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. तो जब बॉम्बे से वापस आया आप सौदागर करने के बाद, तो फिर मैंने एंकरिंग का काम शुरू किया क्योंकि उसकी डिमांड आ गई थी. लिबरल इंडिया वाज गोइंग थ्रू लिबरलाइजेशन फेज इन 1994. तो जी. मुझे पहला मेरा जो इवेंट था वाज अ स्मॉल इवेंट एट इट वाज अ वेरी प्राइवेट काइंड ऑफ एन इवेंट फॉर मोदी ज़ेरॉक्स इंटरनल पार्टी. और वहां पे वो किस्सा शुरू हुआ. आई स्टिल रिमेम्बर दैट व्हाइट शर्ट विद अ एक्स हियर, रेड एक्स एंड अ कैप व्हिच इज गिवन. इट वेंट तो मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा हो गया एंड आई सेड कि आई विल डाइवर्सिफाई इनटू इवेंट्स. एंड एज लक वुड हैव इट, जैसा होता है ना कि अगर आपको भगवान सुनता है या ऊपर वाला सुनता है, तो मुझे धड़ाधड़ इवेंट्स मिलने शुरू हो गए. मतलब यहाँ तक कि मैंने सी गेट लॉन्च किया, माइकल डेल के साथ किया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ काम किया, हमारी दिल्ली की उस समय की सीएम थी शीला दीक्षित जी, उनके साथ काम कर लिया. ब्रांड्स कर लिए बहुत सारे बड़े बड़े, कोलगेट की अंताक्षरी कर ली, मॉन्सेंटो हाइब्रिड सीड्स कर लिया अमीन साइनी साहब के साथ. तो वो सिलसिला पता चला गया. न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर्स ने मुझे ले लिया. विस्ट्राफ्ट के साथ मैंने बहुत काम किया, सबास जोसेफ के साथ मैंने चेतन वोहरा के साथ बहुत काम किया, अभी मैं उनके साथ भी काम कर रहा हूँ. शरद माथुर बहुत बड़े हमारे इवेंट मैनेजर हैं, उनके साथ. तो काम का सिलसिला एंकरिंग में, बिकॉज देखिए आपकी पढ़ाई आपके हमेशा साथ आती है. मेरे पिताजी माताजी मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड में हिंदी पढ़ाते थे. तो एक शिक्षक परिवार के होने से मेरी हिंदी में तो कमांड थी. साथ साथ में मैं जब बॉम्बे गया तो मैंने उर्दू की तालीम हासिल की. बहुत खूब, बहुत बढ़िया. And English was my language. So an anchor with three languages was obviously, एक आपको कमांड होता है. दूसरा क्या था, मेरा एक बड़ा स्किलफुल पार्ट है. I respect time. मैं समय की उपासना करता हूँ. ये मैंने पद्म विभूषण अमिताभ बच्चन जी से सीखा है कि समय की उपासना कैसे करनी है. If you worship time and you respect other person's time, ठीक है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, but as प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर if you respect somebody else's time, बिकॉज आप भी बिजी हैं, मैं भी बिजी हूँ. सो द आइडिया इज कि आप अगर समय की उपासना करते हैं, फिर समय आपको रिटर्न करता है चीजें.
ये बात बिल्कुल। निश्चित So, है। टेल मी समथिंग अबाउट कि वो समय कैसा लगा होगा आपका व्हेन यू वर एंकरिंग फॉर मिस्टर नरेंद्र मोदी इन दैट शो? Well, okay, so I was approached by FICCI, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry. मोदी जी उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और प्रवासी भारतीय दिवस का एक इवेंट ओबरॉयज होटल में हो रहा था जहां मोदी जी आए थे। अब चीफ मिनिस्टर होते हैं तो प्रोटोकॉल इवेंट्स में आपको बस मिनट टू मिनट फॉलो करना पड़ता है। इवेंट बहुत अच्छा हुआ और मोदी जी को मैंने पहली बार लाइव उनके ठीक पीछे खड़े होकर सुना। वाह। एंड हिज हैंड इज सो बिग। एक तो बहुत ही वेल बिल्ट है वो, एंड ऑफ कोर्स बोलते बहुत सशक्त हैं। संघ परिवार से उनकी पूरा बैकग्राउंड तो हमें सबको पता ही है। भारत के बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। उनके ऊपर 542 किताबें लिखी जा चुकी है। 552 बुक्स हैव बीन 542 बुक्स हैव बीन रिटन ऑन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। अभी मैंने उनका नमो बुक फेस्टिवल अशोक श्रीवास्तव जी का एंकर किया। तो शरद पवार जी का 75th बर्थडे हो रहा था विज्ञान भवन में, तो मुझे अप्रोच किया गया कि आप वो इवेंट एंकर कर दीजिए। एंड शरद पवार जी की जो बेटी हैं सुप्रिया सूले, उनके हस्बैंड मेरे क्लासमेट हैं। अच्छा। सदानंद सूले। बट मुझे किसी एजेंसी ने अप्रोच किया था, एंड यू नो हाई पावर्ड इवेंट बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज शरद पवार जी 75th बर्थडे एंड who's who of the Indian politics was all there. अच्छा, मेरे साथ क्या है कि मैं आई एम एब्सोल्युटली ए पॉलिटिकल मैन। मुझे मुझे जो काम नहीं आता मैं करता नहीं हूँ। सो मेरा काम है क्रिकेट खेलना और एक्टिंग करना। और ये बात मुझे ऋषि कपूर साहब ने बताई थी, जो तुमको काम नहीं आता वो करना ही नहीं चाहिए। और शीला दीक्षित जी ने उसकी पुष्टि की, कहते हैं जो काम तुम्हें नहीं आता वो बिल्कुल मत करना, तुम बहुत भोले भाले सीधे साधे नन्हे हो, राजनीति नन्हे तुम्हारे हो। बस की नहीं। So you are a good artist, so you should try to work on that skill sets which God has given you or you've acquired or you've developed over a period of time. तो क्या होता है कि जब आप अच्छे अच्छे संगठनों के साथ काम करते हैं, you work with a good corporate, you work with a good Indian Army का भी ऐसे ही भाई, जब when the Honorable Minister Rajnath Singh ji is coming, so obviously the protocol rider has to be absolutely correct to the time, in the interest of time that मंत्री जी को जब जाना है या किसी मिनिस्टर को जाना है या किसी प्राइम मिनिस्टर को जाना है, तो उस टाइम जाना है। 8:00 पे ही विल लीव। You leave. Yeah. So it makes you work on your skill sets कि कम समय में उतनी ही बात करो in the जितनी economy of जरूरत। words in time जितनी जरूरत है। करेक्ट। So now abhi I don't even have the time to look back at what happened. Probably my biography 90 times might say it all. But the issue here was that, you know, I developed and I am, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, IPL देखता हूँ, कभी भी क्रिकेट खेलता हूँ at the age of 62। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जो लिटरेरी हैं लोग, कुछ छूट गए हैं हमारे साथ। लेकिन मुझे सौभाग्य मिला कि मेरे डायरेक्टर सारे बहुत अच्छे थे। रमेश सिप्पी साहब, I consider him as my university of making. He made sure, and Rahul Tell me, Ravel ji again. Abhinav, I'm not sorry, I'm just not trying to cut you short. I'm just trying to ask you, how was the role in Saudagar? What was your role and how did the climax scene of Saudagar happen? Give me some insight into that. Okay, so what happened was my selection in Saudagar happened through Ashok Ghai, Subhash ji's brother. एंड हम लोग क्रिकेट खेलते थे टॉम ऑल्टर की टीम से। तो अशोक जी से मैंने कहा सुभाष जी से मिलवा तो दो अशोक। तो इसे हाँ ठीक है मैं बात करता हूँ। तो सडनली आई गेट अ कॉल वन डे के सुभाष जी ने बर्थडे पार्टी में बुलाया है। तो हम पहुंच गए। सुभाष जी को हम जानते ही सभी तरह, ही इज द ग्रेटेस्ट शोमैन आफ्टर राज कपूर साहब। सो और जी के पास तो एक्साइटमेंट अलग थी। तो मेरा रोल भी ऐसे ही अनाउंस हुआ। दिलीप साहब को उन्होंने बोला कि ये राजकुमार साहब के ग्रैंडसन का रोल कर रहे हैं, एंड ही सेड नाउ गो एंड टेल द वर्ल्ड यू आर डूइंग अ फिल्म विद सुभाष घई। और उसमें क्या था, हमारे 5 सीन थे और उसमें वो रोल था जो मेरी कैरेक्टर की वजह से, कुणाल की वजह से वो सारा कांड होता है सौदागर में, जब वो
इलेक्ट्रिक चाइल्ड हो जाता Yeah. तो हुआ कि हमारा 2 साल में पिक्चर बननी थी, तो हमको उन्होंने नवीन भाई क्या कहा कि मैं 5 दिन बाद सुभाष जी के पास पहुंचा। मैं कहा सुभाष जी आप ना मुझे अपनी टीम में ले लीजिए एज एन असिस्टेंट, बिकॉज मेरे बस की नहीं है कि मैं यहाँ होटल रूम में खाली बैठा रहा हूँ एंड अब आपकी दी हुई ड्रिंक भी पीता रहा हूँ। आई वुड हाँ. लव टू गेट, मुझे काम करना था। तो मैं कहा मैं तो पागल हो जाऊंगा यहाँ। तो Hmm. इसे तुम मैंने कहा हाँ सर करूंगा। तो फिर मुझे उन्होंने अपनी डायरेक्शन टीम में ले लिया। अब Okay. क्या हुआ कि बिकॉज मेरे सिर्फ 5 सीन थे, पिक्चर बननी थी 2 साल में, 2 साल में अगर 6 दिन का काम है तो आप क्या करोगे। Hmm. तो फिर महाबलेश्वर में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, तो सुभाष जी अपने बाल नोच रहे थे खड़े होकर दोपहर में। Hmm. तो मैंने उनसे जाके पूछा, मैं कहा क्या हो गया। बोले तुझे क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने डांटना शुरू कर दिया मुझे। तो ऐसे सर प्रॉब्लम क्या है बताओ। बोले यार देखो अगर दिलीप साहब को मारता हूँ पिक्चर में तो राजकुमार हीरो बन जाते हैं। वो होता है इंडस्ट्री में, और राजकुमार हाँ. सिंपैथी ले आता है। तो मैंने कहा सर दोनों को मार दो। तो बोला, "है? ऐसे कैसे मार दो। तो मैंने कहा सर जब आपने कहा ये तो मुझे टाइम दो। तो आई रोट 10 पॉइंट्स ऑन अ पेपर एंड आई गिव टू शशि वाडिया हु द चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर। मैं कहा सुभाष Hmm. जी को दे दो। Hmm. अब रात को 8 बजे शशि नॉक्स इन माय रूम, आओ चलो बुला रहे हैं, बड़े आए हैं सुभाष जी को सीन समझाने के लिए, अब तेरे डंडे पड़ेंगे। तो मैं पहुंचा सुभाष जी वेरी रिलैक्स एंड ही सेज आई बाय 7 ऑफ योर 10 पॉइंट्स एंड आई एम certainly have taken, and it's logically also it's correct because by Hmm. that time think करते करते I was competent enough to come behind the camera and also make films। Hmm. इतना तो बड़ा बिकॉज हमारी टीम इतनी स्ट्रांग थी। तो मेकिंग पीछे से क्या होती है उसका भी मुझे बहुत लाभ हुआ और बेनिफिट हुआ। एंड देन ही सेड आई एम सो हैप्पी दैट योर अंडरस्टैंडिंग फॉर कैरेक्टर्स एंड स्क्रीन प्ले सो गुड। तो उन्होंने Screen. सचिन भौमिक को एंड इवेंचुअली बोथ डाई इन द फिल्म। एंड Hmm. सुभाष जी ने उसको ऑफ कोर्स अपना मिडास टच तो देना ही था। Hmm. एंड he created a beautiful cinema movie। Saudagar was brilliant absolutely। and at that time मेरे फादर को पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया, तो मूवी Oh. खत्म करके मुझे वापस आना पड़ा। Hmm. बट टाइम शॉर्ट स्टिंट 1991 में मुझे वापस आना पड़ गया थैंक्स टू रवीना टंडन फादर Hmm. हु वाज माय फादर कलीग फ्रॉम आगरा। तो अच्छा. रवि अंकल कि देखो मैं अभय की नेचर जानता हूँ, वो यहाँ सेटल नहीं हो पाएगा, यू आर दी ओनली चाइल्ड इन द फैमिली, तो तुम वापस चले जाओ। तो मैं बड़े टफ मन से वापस आया, और Hmm. उसकी भी एक कहानी है कि मैं वापस आया, मेरे फादर तो ठीक हो गए, Hmm. मैं डिप्रेशन में चला गया। Oh. तो देखो. तो I went into a deep depression and my Phupa ji, in fact I went for counseling Hmm. and I came out from there and then my Phupa ji was a renowned Hindi poet, Shri Hmm. Ram Kumar Chatur Chanchal स्वर्गीय, जी जी. वो मुझे शिवपुरी ले गए अपने पास, और फिर मेरा उन्होंने आध्यात्मिक, इसको कहते हैं ना दिमाग को मांझा, ब्रेन Hmm. वॉश किया गया भाई, सब एक तरह से लाइफ को एक रिबूट करना पड़ेगा। Hmm. तो आध्यात्मिक चीजें आने लगी, और पढ़ाई गूढ़ हो गई, जीवन के प्रति क्या चीज बताए। फिर 93 में मेरी शादी हो गई नंदिनी चतुर्वेदी से, वो इंदौर से हैं, वो अरेंज मैरिज हुई। फिर जब 1 साल हो गया शादी को तो मेरा बेटा हो गया आयुष्मान। वो भी मॉडर्न स्कूल में पढ़ते थे। फिर उसके 2 साल बाद नव्या हो गई छोटी बेटी। तो बेटी मेरी 28 साल तो की है, तो क्या, नव्या। तो ये कह सकते हैं कि नन्हे became a real family man. हाँ, बिकॉज वो समय के साथ साथ जो समय की थापी और समय के साथ साथ जैसे परिवर्तन होता है, अब परिवार के साथ हम दिखाते तो परिवार के चैनल हैं, लेकिन परिवार हमारे सब टाटे रहते हैं। लेकिन करेक्ट. मैंने ये कोशिश की कि इसी, मेरा एक बिलीफ है नवीन भाई हम्म. कि पर्सनली, पब्लिकली और परफॉर्मिंगली आदमी को एक होना चाहिए। करेक्ट. जो मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। हम्म. मैं ये नहीं कि मैं प्रोफेशनली एक अलग आदमी हूँ, एक देयर अनदर अभिनव चतुर्वेदी, देयर इज पर्सनली अनदर अभिनव चतुर्वेदी। लाइफ इज बीन एन ओपन बुक। मुखौटा मुखौटा एक ही है. नहीं, मुखौटा तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं, मेरा You कहने का should on a lighter way, there's only one personality.
या दिस वन पर्सनालिटी, हमारे फूफा जी कहते थे कि जहन, जबान और जमीर वन का फिगर बनाना चाहिए। बिल्कुल, आप तभी तो बन आप तो खुद ही प्रतिष्ठित लॉयर हैं, तो जो कथनी है वो करनी भी है, करनी है वो कथनी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल। आप मन का ऐसे सोचता कुछ है, होता है। तो वो मुझे पड़ोसन फिल्म का डायलॉग याद आता है महमूद साहब का, कि जो सोचता है वो होता नहीं, जो होता है वो सोच नहीं सकता। तो अच्छा अभिनव भाई, इसी इसी पे आ जाते। वी नो दैट यूर, आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, तो कोई दो डायलॉग अमिताभ बच्चन जी के हो जाए। हाय नवीन, तुम कैसा है? आज तेरे से मुलाकात करके बहुत अच्छा है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहनशाह। क्या? Agnipath. See, Amitji, again, I've just received a letter from him on my granddaughter. Very sorted man, very polished. In fact, I worked with him in ABCL. I did smart tracks, that thing. He mentored my career in Mumbai. Uh, and he himself, his lineage has been so that coming from a very highly qualified academic background, हम्म, हरिवंश बच्चन जी की एक पंक्तियां सुनाता हूं आपको, बहुत सुंदर है, उन्हीं के प्लीज। सुर में। कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं बतलाता हूँ। राह पकड़ तू एक चला चल, आ जाइएगा मधुशाला। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाइएगा मधुशाला। मधुशाला इज नॉट अ बार, मधुशाला इज सीकिंग। हम्म, आज अगर मैं तक आना चाहता हूं, तो मेरा कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं आप तक पहुंच सकूं। हम्म, हम्म। अब कुछ समझाने के लिए उसको मधुशाला शब्द का, लेकिन भगवान तक जाने के लिए भी एक मधुशाला है। अलग अलग रास्ते बताते हैं, धर्मों के करते हैं। डिवाइन इज कॉमन। करेक्ट, 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 मनमोहन करेक्ट। जी बोल चुके थे अपनी फिल्मों के द्वारा कि द ओनली कॉस्मिक डिवीजन इज ब्लड ग्रुप, रेस्ट इज ऑल मैन मेड, पीरियड। करेक्ट। अच्छा अभिनव साहब, ये बताएं, हम लोग टू कभी बनेगी क्या? हम लोग टू बनेगी? देखिए, वी हैव अप्रोच प्रसार भारती, दूरदर्शन ओटीटी, एंड मिस्टर गौरव द्विवेदी हैज assured, because I think the need of the hour is that समय के साथ साथ we are हम्म, seeing there is a modified India. बहुत से लोग उसे modified इंडिया भी कहते हैं। हम्म, क्या है कि जो 1984 में प्रेवलेंट थी, जेन जी का प्रवेश हुआ है। और अशोक श्रीवास्तव जी ने एक बहुत अच्छा शब्द कॉइन किया है, जेन वी। हम्म, भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के कगार पे है 2047 यानी 2047 तक। तो हमने जेन जी की जो प्रॉब्लम्स है वो जेन वी में कन्वर्ट किए हैं। हम्म, जेन वी बेसिकली इज अ कॉइन वर्ड where it is talking about valor, हम्म, victory, हम्म। uh, not vapor, या नॉट वेपर। हम्म, not vapor, and the problems which are faced by the Gen Z world. आज की जो Gen Z की समस्या है, आज की जनरेशन जो प्रश्न अनुत्तरित रह गए हैं, प्लस इसी Gen Z जैसे कहता है कि ये जो आपने हमें एनवायरनमेंट के साथ प्रॉब्लम्स दी हैं, ये सब हमारी क्रिएटेड नहीं है। ये आप हम्म, हम ये हमारी जनरेशन से वो पूछते हैं कि देखिए ये सब प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं हमारी क्रिएट हुई तो नहीं है। हम्म, We have not inherited. You are passing this baton to us. हम्म, So it is basically talking about fitness, mental health, your socio-economic surroundings, your political surroundings, your geopolitical surroundings. It's a very, very serious subject and also very entertaining हम्म। नहीं तो because हम लोग का फिर, हम लोग का हाउ हाउ डू लुक एट इट प्रोग्रेसिंग? किस आएगी हम लोग, या कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अभी? अब आना तो पड़ेगा हम्म, because
the kind of OTT trash which we are getting outside. Even the government has taken thing to ban a few channels. एक घर के अंदर when you're free to air, you're coming into homes to penetrate. उसका सहज पार्ट, उसका एक साफ सुथरा मूवी भी बन सकती है या सीरियल भी बन सकता है विद गुड कंटेंट, बिकॉज कंटेंट इज द किंग. तो मैं समझता हूँ कि उसमें सारी चीजें दिखा सकते हैं, सिर्फ अभद्रता और गाली गलौच ना हो. हाँ, मेरे ख्याल से देखिए क्या है कि गाली अगर गाली देने के उद्देश्य से दी जाए तो गाली हम भी देते हैं. हाँ. लेकिन सवाल ये है कि आप once you're in a public domain, what not to say is more important than what to say. आप बिना गाली दिए भी, मैं आपको गालियों का एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ. मेरा एक शो होता था लल्लन भैया, तो मैं वहां पर चांदनी चौक का कैरेक्टर वॉइस ओवर करता था. अब क्या कर रहा, कहाँ जा रहा, रोबे नवीन बड़ी बढ़िया शर्ट पहन रखी है. और उसमें गालियां रखी थी, अबे चूरन के पाइप, अबे झाड़ू से बिछड़े दिन के, अबे ओए बावड़ी पूछ. तो क्या होता है कि वो हमें जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, अब वो गाली नहीं है, बट यू कैन स्टिल, अबे बिजली से झाड़ू से बिछड़े तिनके. अब ये अपने आप में झाड़ू से बिछड़ा तिनका क्या होगा? उसको तो हाँ, अबे बिखरे मोती. अब उसका इंटेंशन पता चल गया कि कहना क्या चाहते हो कि यार कहता है ये ना अपना एमसी भी ठीक कर ले, ये वाला. John, this was a phrase which was used by my son a lot. When I used to be zoned out, तो he used to say, "Come on, switch on, dad." So तो क्या होता है कि आपको उस अभ्यस्तता होती है. मैं मानता हूँ कि स्वच्छ मनोरंजन जो है वो आप अपनी लोक संस्कृति वगैरह देखिए तो उसके बिना भी हो सकता है. अच्छा, There is अभिनव enough drama. साहब, There is enough. Naveen, there is enough drama in our life. हाँ, फुल ऑन घर में बाहर में सारा दिन फुल ऑन चलता है ड्रामा. ड्रामा है वो तो, और दैट इज आल्सो द ब्यूटी ऑफ द एंटायर थिंग. इंडस्ट्री की तरह तो नहीं है ना कि आपके कोर्ट में भी जाके जैसे हम लोग थोड़ा लार्जर देन लाइफ हो जाए, ढंग ढंग ढंग, वहां तो योर ऑनर करके बात करनी पड़ती है, माय लॉर्ड करके. नहीं तो मैटे डिसमिस हो जाना है. हाँ, तो in my film production company which I started after coming from Bombay, AV नेटवर्क. तो फिर मैंने उसमें ISO 9000 में भारत में लेके आया, माइकल डेल को लॉन्च किया, कोहिनूर बासमती राइस की फिल्में बनाई, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे भारत की पहली फिल्म और आखिरी फिल्म मैंने ऑथर की, डॉक्टर मनीषा श्रीधर के WHO में है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ MSME. CII is my client. We keep doing a lot of work. तो अभिनव साहब, I have one more question. We are also an impaneled producer with DD, so that qualifies me to pitch for Hum Log 2. Your answer. Hum Log 2. I think there's no one more qualified than you to get to Hum Log and the team, whoever is there. Yeah, because if Dr. Arvind Singhal, I was coming to that. I was just coming to that. कि किसी ने PhD करी है हम लोग पे. Yeah, so Dr. Arvind Singhal, who was studying at the Annenberg School of Communications, Los Angeles, USC, University of Southern California. तो वो भारतीय मूल के नागरिक है, तो उनके दिमाग में फितूर चढ़ा कि भाई चलो हम एक PhD करते हैं. तो उनके जो प्रोफेसर थे एवरेट रॉजर्स, वो उनकी पत्नी श्री जो थी वो बनारस की थी. तो उन्होंने जब वो, और उनके साथ भी जो उनकी PhD हुई बड़े मजेदार किस्से से हुई जी. तो वो आ रहे, तो हमारे फादर के एक स्टूडेंट, ही वाज कमिंग फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू दिल्ली, तो उनके साथ फ्लाइट में मॉडर्न नाइट हमारे सीनियर सुरेश गुप्ता जी बैठे हुए थे. तो दो हिंदुस्तानी मिल गए, तो उन्होंने तो पूरी कहानी पूछ ली. बोले क्यों जा रहे हो? हम लोग पर PhD करने जा रहे, वो तो हमारे सर का बेटा है. तो अरविंद तो लाइक वाज सो एक्साइटेड, अरविंद भैया. तो उन्होंने, वो फिर मेरे घर आ गए, मेरी सारी फैन में ले गए, फिर आई लाइंड अप एवरीथिंग फ्रॉम एवरीबॉडी फ्रॉम हम लोग.
उसका उन्होंने फिर मुझे दिया कि फिर 89 में फिर द फर्स्ट एंटरटेनमेंट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे दे कॉल्ड मी, दे इनवाइटेड, द यूएस गवर्नमेंट इनवाइटेड मी टू LA, and Hmm. I read a paper on Indian television and motion pictures in front of the legendary television actress Ruth Warwick, who starred in All My Children. And I have a beautiful photograph with Ruth, and Hmm. also uh, uh, Leah Salonga of Philippines, the Hmm. lady who played the lead lady in Kim, and Hmm. Tatiana Palacio, and people from world over had come. And I had the pleasure of seeing the shooting of Knots Landing, where I met Nicolette Sheridan for the first time, Wow. and went to the Universal Studios. So your entire approach to a global life added up. Then I started doing global events as an anchor. मैं दावत बासमती राइस के लिए I went to Malaysia and Bangkok. Indorama, I traveled for Indorama to Thailand, to London, to I think Haldia. you're the brand ambassador for the Thai government for films or something like that, and So Tribes happened India. that when I went to बिल्कुल सही कहा आपने, मैं जब थाईलैंड गया तो हमारे एम्बेसडर हर्षवर्धन श्रृंगला जी वहां पर थे, वो मेरे कॉलेज के हैं, एंड उनसे मैं कर्टसी कॉल के लिए गया तो बोले शूटिंग खत्म कर लो, एक हम लोग टूरिज्म पे एक फिल्म कर रहे थे, थाई थाई टूरिज्म की। तो इट वाज बेसिकली अ फैमिली डेस्टिनेशन, उसको प्रोजेक्ट करना था। Hmm. वो 1.5 मिनट फिल्म है अबाउट थाईलैंड टूरिज्म। Hmm. तो हिज एक्सेलेंसी टोल्ड मी दैट प्लीज कम फॉर इंडिया डे। तो मैं और मेरी वाइफ और मेरी डॉटर वी वेंट फॉर द इंडिया डे, एंड दे आई मेट अ लेडी कॉल्ड लेखा शंकर, शी इज अ जर्नलिस्ट। तो उन्होंने कहा कि भाई इनकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। मैंने कहा क्या? बोले वो भाग मिल्खा भाग हमारे फेस्टिवल को चाहिए Hmm. थाईलैंड के, तो प्लीज मंगवा दीजिए। तो मैं ठीक है, मैं राकेश से बात कर लूंगा। तो मैं दिल्ली आके राकेश ओम प्रकाश मेहरा से, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, फ्रॉम बाल भारती स्कूल। तो मैंने Hmm. राकेश को, और वैसे भी वो दिल्ली सेंट्रिक बहुत ज्यादा है, तो Hmm. मैंने राकेश को रिक्वेस्ट किया। राकेश से देखो भाई मैं तो जा रहा हूँ आईफा अवार्ड्स के लिए फ्लोरिडा, तुम और नंदनी ले जाओ पिक्चर। तो मैं और माय वाइफ वी टुक द Hmm. मूवी representing India to what is called the Thailand International Film Destination Festival. Paul Wow. Spurrier is Very nice. Hmm. festival director, and I represented India by taking Bhag Milkha Bhag. So Thailand से मेरा connection बहुत अच्छा है। I have got a lot of friends in Bangkok and Hmm. Hua Hin and Koh Samui. तो बेसिकली वो चीज एक के बाद एक चलती चली गई, Hmm. एंड इट वाज जस्ट वन। कहते हैं ना बम्बई की भाषा में, इसकी तो निकल पड़ी, तो निकल पड़ी, मेरी भी चल पड़ी, निकल। चल पड़ी, गाड़ी चल पड़ी। तो अभिनव भाई, सुपर मजा आ गया, इतनी गपशप हुई। तो अब ये दो मेरे आखिरी के दो सवाल ये रहेंगे कि एक या दो या तीन कैरेक्टर जो आपके लाइफ में हो, जिससे आपको बहुत प्रोत्साहन मिला और जो एक तरीके से आपके जीवन के खंबे बने रहे या फाउंडेशन स्टोन। मैं इसका एक बहुत बड़ा श्रेय, मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ इस बारे में। ये मेरा दूसरा जीवन है। 2010 में मेरे लेफ्ट लंग में पानी भर गया था। माय वाइफ नंदिनी चतुर्वेदी हैज स्टेम्ड अ रॉट। मतलब मुझे कोई अगर आदमी ठीक कर, मेरे कोई सच में मुझे ठीक कर सकता है तो मेरी बीवी है। हम्म। हम्म। और मैं अपनी बीवी की बहुत सुनता हूँ, हम्म। इसलिए नहीं कि सुनना, वैसे भी सुनना चाहिए, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। दूसरा क्या होता है, सी देयर आर टू रूल्स, हम्म। वाइफ इज ऑलवेज राइट। राइट। रूल नंबर टू, इफ यू थिंक द अदर वे अराउंड, रेफर टू रूल नंबर वन। रूल नंबर वन। एंड यू नो, एक तो औरतों में वैसी, महिलाओं में वैसे सशक्त भारत है, एम्पावर्ड है। दूसरा क्या है कि वो सच में उनमें ज्यादा अकल है, तो वो बड़े प्रैक्टिकली सोचती हैं, तो वो एडवाइस भी करती है। मेरी मदर की बहुत सेवा की, फादर की बहुत सेवा की। तो हमारे और मेरी बेटी की, तो वो उनके लिए वो आईजी हैं, तो उनकी पुलिस है। तो हाँ। मम्मी की पत्ता भी नहीं उखड़ सकता। आज मेरी कल रात को माय सिस्टर इन लॉ हैज कम फ्रॉम इंदौर with her जी जी। daughter. हम्म। So Tani has
Tani, Divya Chaturvedi has come along with Divyanshi. So क्या है कि family setup में my wife has played a very pivotal role in terms of Keeping the family getting the together. keeping the family together, and rightly so, because she is an event manager, उनकी event company है, तो वो life को एक event की तरह देखती है. Very sorted. Uh, अच्छा, और गुस्सा भी अभिनव भाई, ऑन अ लाइटर नोट, मैं बड़ा सेल्फिश हूँ, हम लोग 2 बनेगी तो एक रोल दोगे मुझे? क्यों नहीं, देखिए हमें वहां पे विलायती चाचा भी तो चाहिए. बहुत खूब, ठीक है. आई टेक यू फॉर योर वर्ड एंड आई कम डाउन. वो भी विलायती चाचा लॉयर बन गए. Thanks, Abhinav. Acha, Abhinav, on the last note, among the politicians, who do you think is the rising star, or what? As you said, you're apolitical. आप किसी पार्टी विशेष से मतलब तरफदारी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको 2-4 लोग जो बहुत अच्छे पर्सनली लगते हो, तो कौन होंगे वो? देखिए, अभी तो नरेंद्र मोदी जी, उनका थिंक टैंक अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, Dr. S. Jayashankar. I mean, Basuri Swaraj, I think, is one of the most qualified people. Because political scenario is changing in India. भी बंगाल में देख लीजिए, आप तमिलनाडु में देख लीजिए, क्या सब उलट फेर हुए हैं. So new people are emerging on the scenario because change चाहिए. So Dr. Sudhanshu Trivedi, I think he's one of the best. Anurag Thakur is brilliant. Uh, Raghav Chadda, he's just joined BJP from AAP, and Raghav is my junior from school. So you see, okay, people who are linear in their progression, who've got clarity of thought, or क्या करना है, because the entire geopolitical system around and globally, with especially the unfortunate Iran war, it is very difficult for survival has become different. Gas prices have gone up, though India has controlled it very heavily. And the world is looking up to India. ये बात है कि सब लोग भारत की तरफ देखते हैं. ऐसे ही नहीं भारत के इंटरनेशनल 29 अवार्ड्स नरेंद्र मोदी जी को दे दिए गए. 29 नेशन 29 नेशंस अगर एक भाषा कर रहे हैं, इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी इज सीज एज इंडिया सीज थ्रू हिम दैट भारत एक बहुत बड़ी शक्ति है. तो उन्हें अपने सेल्फ को, अपने भारत को राष्ट्र सर्वोपरि के आधार पर आगे बढ़ाया है, तो विश्व में उसको सराहा जाता है. अटल जी ने जो चीजें बातें कही थी, फिर अडवाणी जी ने जो बातें कही थी राष्ट्र सर्वोपरि की, देश की, कि मैं रहूं ना रहूं, देश रहना चाहिए. अब वो क्या होता है, हमको लगता है कि यार ये नाटक कर रहे हैं, पर वो सही बात है. आप भारत की सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत विविधताओं का देश है, डाइवर्सिटी बहुत बड़ी है, उसको यूनाइट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जयचंद बैठे हुए हैं यहाँ तो हिस्टोरिकली, तो वो पीछे स्पाइक करते हैं. और आपको आज जो लगता है कि जो चीज व्हील इज गोइंग डाउन, इन क्रिकेट दे से द व्हील इज आल्सो गोइंग टू कम बैक. तो किसी भी राजनीतिज्ञ को कम नहीं आंकना चाहिए, राहुल गांधी को कम नहीं आंकना चाहिए. इनके बीच में टसल चलती रहनी चाहिए, वो हमारे लिए एंटरटेनमेंट है. करेक्ट. पर अंदर से बड़े सीरियस हैं अपने अपने मोटिव्स में. बहुत सुंदर तरीके से आपने इसका वर्णन किया है, बहुत सुंदर वर्णन किया है, आई मस्ट से. क्योंकि देखिए, उनका काम है राजनीति करना, तो वो तो हर साम दाम दंड भेद सब लगाएंगे. कोई भी आदमी अगर सीट के लिए लड़ेगा, तो वो अपना सब कुछ सर्वस्व दांव पे, उसको अगले 5 साल बैठना है. तो वो अपना काम कर रहा है, प्रोफेशनली काम कर रहा है, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, वो मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, वो पब्लिक को कर रहा है, और ये ग्लोबल फिनोमिनन है. ये भारत का नहीं है. क्यों भाई साहब, डोनाल्ड ट्रम्प भी तो लगे हुए हैं ना अपना देश के, अमेरिका फर्स्ट कह रहे हैं. नाउ दैट यू स्पोकन, अभी आपने ट्रम्प का नाम लिया है,
संक्षिप्त में व्हाट आई मीन दिस वाज नॉट ऑन द स्क्रिप्ट, मेरे एकदम दिमाग में आया, आई हैव जस्ट बीन मेमोराइजिंग मेनी थिंग. व्हाट डू यू थिंक अबाउट ट्रम्प? क्या ट्रम्प के बारे में क्या सोचा आपकी? Sir, I think that, he is a very gritty man, first of all. हम्म. अब वो ये ईरान क्यों कर रहा है वो ट्रम्प जानता है, ट्रम्प का दिमाग जानता है. हम्म. Donald Trump is also the president of an elected government. He was, and also, we should have the respect for the electorate who got him there. When you come in the arena, you perform or you perish. If you don't perform, You'll perish. you will perish. You. आज हम ही और आप हैं. हम अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो we will perish. Yeah, correct. So he is out to perform, to put a world which is against violence, against atrocities made to पर women in. इसका तो दूसरा जवाब ये हो सकता है जो मैं इमीडिएटली कहता हूँ, वो जो मिसाइल चली और इतने सारे बच्चे मर गए ईरान में, तो where does he stand for peace? देखिए वही बात है कि you see, this is where the paradox and dichotomy come in play, that you are talking two different languages. When you go out with arms, you are putting a barricade on talking across the negotiation table. So what is he coming across? He's coming across as a bully who would first attack, then bring you to the table to talk. Because, and the talks are failing, which is in turn getting pressurized, and we don't realize that the Strait of Hormuz, which is this, so much so even, my wife was supposed to travel to Poland. The airfares have become so expensive. तो क्या है कि वो अच्छा करने के चक्कर में वो कहते ना, नमाज कता करने गए, रोजे गले पड़ गए, वो इनके गले पड़ गई चीजें. अब टू सर्टेन एक्सटेंड ऑफ सी, वायलेंस का कोई स्थान नहीं है दोस्त. इस वसुधैव कुटुंबकम में, जैसा कि मोदी जी कहते हैं, व्हेन वर्ल्ड, सो आप पहले तय कर लीजिए कि आप अपने हैं या बाजार के हैं. इन अ मार्केट ड्रिवन डेमोक्रेसी, इन अ मार्केट वर्ल्ड, आपको सब चीजें अक्रॉस द टेबल बैठ के बात करनी पड़ेगी, नहीं तो वो उल्टा पड़ जाता है. करेक्ट. पर अभिनव भाई, आप मंझे हुए पॉलिटिशियन की तरह बात कर रहे हो, जो मैं आपसे देख रहा हूँ. It boomerangs. See, I have been a student of politics globally. और मैं मिलता रहता हूँ लोगों से. मेरी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो है कि मेरा लोगों से मिलना जुलना होता है. मुझे बाहर की आदमी से मिलने का मौका मिलता है, बाहर की स्ट्रेटेजिस्ट से मिलने का मौका मिलता है कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स में. तो ये एक किसी ने पूछा, एक जनरल, बड़े मजेदार है, आपको इंक्लूडिंग नोट पे, एक किसी ने कहा कि व्हाट इफ पाकिस्तान न्यूक्स इंडिया. तो उसने जवाब दिया, इंडियन जनरल ने, वो कहते हैं कि आई डोंट नो अबाउट माई सेल्फ, बट आवर जनरेशन विल सर्टेनली रीराइट हिस्ट्री. Once upon a time, there's a country called Pakistan. Yeah, correct. Beautiful. हाँ, बहुत बढ़िया. Because it is shameful, and today is the day when Operation Sindhu started last year. And I have made a play on Operation Sindhu because I think it was the need of the hour. अच्छा अभिनव, आपकी एक पिक्चर आ रही है पंडित जी. हाँ. ये पंडित जी, इसके बारे में बताएं कुछ. जी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है. वो संदीप मारवा है, मारवा स्टूडियोज के ओनर. अशोक त्यागी जी, द वेटरन डायरेक्टर, इज डूइंग इट. तो पंडित जी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है. ही इज अ डिटेक्टिव, एन एआई एनेबल्ड पंडित जी. अच्छा. और मुकेश त्यागी इज प्लेइंग द मेन विलन. अभी 9 को मेरा मुकेश त्यागी के साथ शूटिंग है. महेंद्र बाबू इज द कैरेक्टर. तो पंडित जी जो है, उनको ये पता चलता है कि ये
अपनी माँ की इमेज को धुआं दिखाकर पब्लिक को उल्लू बना रहे हैं। और घंटियां अच्छी बज रही है बैकग्राउंड में, क्यों घंटी बजी? हमारे ब्रेड वाले आ गए, क्यों घंटी बज रही है? अब आप हाँ। पूछिए उससे, क्यों घंटी बजा रहा है? घंटी बहुत जरूरी है। क्यों घंटी बज रही, क्यों घंटी नहीं बजनी चाहिए? जरूर बजनी चाहिए, घंटी बजनी चाहिए। तो ब्रेड वाले, अंडे वाले आते हैं सुबह, भैया विपिन भाई, तो क्या है उसमें, वो पर्दाफाश करने के लिए वो उसकी सारी चीज को स्कैन करता है, इस आदमी का कैरेक्टर, इसकी बॉडी लैंग्वेज, और ये पता पड़ता है कि एक जो धर्म का स्थान है वहां बहुत पैसा गड़ा हुआ है, तो वो उसको कैप्चर करके वहां से पैसे बनाना चाहता है। So, it's a basically a story against the social taboos, or rather the religious taboos. उसमें पंडित जी का एक डायलॉग है कि पंडित अभिनव चतुर्वेदी जब तक जिंदा है, क्योंकि उसका वो जो साइंटिफिक सनातन की बात की गई है, कहते हैं जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तेरे मंसूबे तो मैं कामयाब होने नहीं दूंगा। बिकॉज ए आई एम एन, मैं वो पुराना ट्रेडिशनल पंडित नहीं हूँ, आई एम एआई इनेबल्ड पंडित। ज्योतिष क्या मुझे पता है, वास्तु मुझे पता है, और मुझे आती भी है। तो ये आई एम एबल टू रिलेट टू दैट कैरेक्टर सो मच, बिकॉज ये सब सब्जेक्ट्स मेरे हैं। मैं हर मंदिर जाता हूँ, हर मस्जिद जाता हूँ, कई जियारत करने निजामुद्दीन चला जाता हूँ, मेरे घर के बगल में चर्च है, मुझे जहां शांति मिलती है मैं ले लेता हूँ। और शांति की आड़ में तुम धंधा करोगे तो बस मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दैट इज द प्लॉट ऑफ दैट स्टोरी, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडर्न साइंस रिलीजन पुट टुगेदर, बिकॉज अब ये डिबेट शुरू हो रही है वर्ल्ड के अंदर तो भी, कि धर्म कितना साइंटिफिक होता है आपका, हिंदू धर्म कितना साइंटिफिक है। सनातन शब्द के अर्थ ही है जिसका ना आदि है ना अंत है। बहुत खूब, बहुत तब बढ़िया। अटल जी तब अटल जी ने जब ये लिखा कि पग पग मेरा हिंदू परिचय, तो क्या बुरा लिख दिया भाई? यू आर टू द मैनर बॉर्न। आप अपने डीएनए को कैसे कर दो? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी वेल सेड। आप किसी को फोर्स मत कीजिए कि आप धर्म परिवर्तन कीजिए, वो आपकी चॉइस है। हमको भी उसका सम्मान करना है, आपको भी उसका सम्मान करना है। वो उसका डीएनए लेके चल रहा है, आप अपना डीएनए लेके चल रहे हैं। आप उसको मत छेड़ो, आप उसको मत छेड़ो। बहुत खूब। पर ये जो कन्वर्जन्स की भाषाएं आ रही हैं, इसको कर दो, उसको इस्लाम में कर दो, रेप मर्डर सब कुछ करो, तो उससे फिर पलायन होते हैं। करेक्ट। अभिनव भाई, आप देख, कल बंगाल के इलेक्शन हुआ, बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो जमावड़ा लग गया, रात को मैं देख रहा था न्यूज। क्या हुआ? What happened? What happened? नो, पीपल इन masses came to Bangladesh border because अब स्टेबिलिटी आ रही है। So were they going to Bangladesh or were coming in? कमिंग टू इंडिया नाउ, बिकॉज जो भाग के गए थे बंगाल, हालत तो वापस आना चाह रहे हैं, बिकॉज अब स्टेबिलिटी आने का लक्षण भाई साहब एक बात बताइए, एक शेर है उर्दू में बहुत अच्छा, इरशाद। कि सर्द रात ये नींद का बोझ और ये आवारगी, हम अपने शहर में होते तो घर गए होते। क्या बात है, क्या हम अपने शहर में होते तो घर गए होते। तो अपने घर में जब हम वतन होते हैं, जब वहां से डिस्प्लेस होते हैं, वो पीड़ा बहुत बड़ी होती है, उसका पेन बहुत बड़ा है। यू डिस्प्लेस फ्रॉम होम्स, गाजा स्ट्रिप देख लीजिए साहब, व्हेन पीपल आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम होम्स, देयर इज नथिंग मोर क्रूअल देन गेटिंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम योर होम। अभिनव भाई, जाते जाते कुछ बढ़िया सा सुना दीजिए। आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत आवाज में आप गाते हैं, तो कुछ एक बढ़िया सा गाना सुना दीजिए, भजन सुना दीजिए, जो इच्छा हो सुना दीजिए। तो मैंने एक गीत लिखा है, बहुत प्लीज। सुंदर गीत है। हंसते चलो, हंसाते चलो, बिखरे हुए गीत गाते चलो। हंसते चलो, हंसाते चलो, बिखरे हुए गीत गाते चलो।
ना, आए हो दुनिया में तुम किस लिए, जी जाओ मन से सभी के लिए, ये देह मिट्टी में मिल जाएगी, हस्ती की खुशबू फैलाते चलो। चलते चलते मैं आपको एक और बात बता दूं कि जी, मैं मेरी किताब दी आ रही है क्रिकेट एंड अस। क्रिकेटर्स। It is a beautiful book of understanding life and management put together. And God willing, in by about a year. And yesterday only there was some talks of doing somebody was talking about doing my biography called Nanne Times. अरे So let's keep those across. हाँ, मैंने भी आपको बोला ही था कुछ दिन पहले कि एक कुछ लिखा जाना चाहिए आपके बारे में, पर एनीवे ग्रेट दैट इट्स कमिंग। हाँ जी। नवीन जी उसको कार्यान्वित कर दिया गया है। देयर इज अ बॉय फ्रॉम रीवा, ही इज कमिंग इनटू इट। उन्होंने बहुत एक्साइटेड होके, उनकी एक बहुत फाउंडेशन है, बधाई, बहुत तो बधाई। हम लोग उस पे लग गए हैं। सर आप हमें काम देते रहो, हम आपको मैं रिजल्ट तो देते मैं तो सर खुद आपका असिस्टेंट बनने को तैयार हूँ। हम बड़े परफॉर्मेंस ड्रिवन आदमी हैं साहब। हम तो भूत, काम के मामले तो हम भूत हैं। हमें काम से लाद दो, हम आपको बता देंगे कि बॉस ये इतने हम दिन में बन जाएगा। हम किसी से कम नहीं। सर हम नो शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है इम्पॉसिबल। सर हमारी कंपनी की टैगलाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है हाँ जी। कि वी डू द इम्पॉसिबल इमीडिएटली, ओनली द मिराकुलस टेक्स अस अ लिटिल लॉन्गर। क्या बात है, क्या बात है। तो अभिनव भाई, बहुत बहुत आपको बधाई आपके सारे वेंचर्स के लिए। मजा आ गया। हमारे दर्शक जब इतनी सारी जियोपॉलिटिकल आपका फलसफा, मैं अपने दिमाग में सोच रहा था कि थंबनेल क्या बनना चाहिए, तो मैंने सोचा हम लोग और फलसफा विद अभिनव चतुर्वेदी। बहुत बड़ा हो जाता है सर। हाँ, नहीं कर नन्हे लेंगे। unplugged, नन्हे अनप्लग्ड। नन्हे अनप्लग, डन डन। बिकॉज इसी कभी कभी बहुत कम होता है। और आपके तो अ, मैं मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ था वीवी गिरी जी से मिलने का, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का। आप उसी परिवार से हैं। देखिए क्या है कि अ, मेरा ये मानना है, हम लोग बहुत कम ऐसा होता है। और मैं आपसे अभी कैंडिड बात कर रहा हूँ, ये बहुत कम होता है कि आप बिल्कुल खुल के बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एट द एज ऑफ 62 नवीन, आई डू नॉट विश टू लीड एनीबॉडीज लाइफ। बिल्कुल। मेरे ग्रैंड डॉटर हो गई, मेरी आगे की जनरेशन सॉर्टेड है। जी जी। मेरा बेटा प्रोफेशनल फुटबॉल खेल रहा है, उनकी पत्नी जूलिया, वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। हम्म माय डॉटर वर्किंग विद द मीडिया इंडस्ट्री, नव्या चतुर्वेदी, अब उसकी शादी हो जाएगी। तो हम्म। मेरा जो बच्चे का जो बैकपैक है वो तो बिल्कुल है ही नहीं कुछ भी। नो बैगेज। एक मिनट, मैंने अपने सारे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए हैं। बहुत खूब। मैंने अपनी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी दे दी है। हम्म तो मेरे लिए 62 साल की उम्र में दोस्त बचता क्या ऐसे काम करने के। मेरे दो सवाल थे ऑर्गन डोनेशन के ऊपर। मेरे को बड़ा अच्छा आया। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है बॉनी सिंह, एंड आई वाज इंस्पायर्ड बाय हिज मदर, क्योंकि आपने अभी ऑर्गन डोनेशन किया। तो एज दे से, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। एंड हिज मदर ऑल्सो डोनेटेड ऑल हर ऑर्गन्स, और उनकी आंखें अब किसी को लग गई है यहाँ कनाडा में। I had pledged my ITIS on the to ITIS on हाँ। already with Kirti Azad, Aditi Mangal Das, हम्म himself, Rohit Bal, who's no more with us. हम्म Buddha's Eyes was pledged. So that तो we had done in 2001. हम्म फिर हमारे एक हम्म, दोस्त हैं इकबाल सिंह देवा, उन्होंने हमसे कहा कि आप प्लीज प्लेज कर दीजिए। मैं कर दिए। सर बहुत बढ़िया। क्यों संचित करना है किसी चीज को? बिल्कुल। खाली हाथ आए, खाली हाथ जाओगे तो ये भैया ये सब यहाँ का उधार यहाँ पे भी चुकता करके जाओ। हाँ, बहुत अच्छा। ऊपर तो वो अच्छी, मैं, आपने, ऊपर ऊपर जाके अच्छी नींद आएगी। बिल्कुल। तो मिसेस मल्होत्रा ने भी अपनी आंखें डोनेट करी। यहाँ तो आएगी नहीं। अब ऊपर वाले ने क्रॉनिक इंसोम्निया और दे दिया है, हाँ। ऊपर जाके अच्छी नींद आएगी।
अच्छा, टेल मी वन थिंग, आपने मुझे फोटोग्राफ भेजी विद मुझसे वो मुझसे लोग कहते हैं कि आप सोते नहीं है। मैं कहा आई थिंक जावेद साहब सही कहते हैं, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। it's a waste of time. Ajay, tell me, I was intrigued by the photograph that you sent me where I think my grandfather had a hand pat on your, he was patting you on your head. तो वो पीछे जो लड़का खड़ा था, आप कह रहे थे, who was that in that photograph? Dixit, Sheila Dixit ji's son. He is a संदीप. former Sandeep, he was former member of parliament. वो संदीप अच्छा, के साथ है, और मिस चंद्रा मेरी टीचर खड़ी हुई, मिसेस एस चंद्रा। तो वो हम अच्छा. लोग जैसे प्रेसिडेंट के बर्थडे पर हम लोग की स्कूल विजिट्स होती थी। हम्म. तो हमको पता नहीं था, हमें पता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिल रहे हैं, और हमें नहीं पता था ये स्कूल वाले फोटोग्राफ भी खींच रहे हैं। सो इट्स अ वेरी, बिकॉज ही वाज सच अ ग्रेट स्टेट्समैन। और वो फोटोग्राफ जब आपने मुझे सॉरी Bless you, bless you. हम्म. बड़ा डस्ट वगैरह सेटल हो रही है, इट्स नॉट हम्म. ह्यूमिड नाउ, हम्म. लास्ट नाइट इट रेन हेवीली। हम्म. सो सो इट वाज अ गुड रिकॉल, बिकॉज आप अपने जीवन को जब पीछे ब्लैक एंड व्हाइट एरा में देखते हैं और कलर टेलीविजन से अपनी लाइफ को, कलरफुल लाइफ को कंपेयर करते हैं, तो हम्म. एक आपको एहसास होता है कि आप कहाँ से कहाँ तक गुजर गए, एक यात्रा का एहसास होता है कि यार ये तो तब था 1970 में, मैं 5 साल का था, तो ये तब की फोटोग्राफ है। शायद क्लास 1 या क्लास 2 की थी, जूनियर स्कूल से, जूनियर मॉडर्न स्कूल, हम्म. बारकम्बा रोड, हुमायूं रोड। तो अब ये लाइफ अब थी और अब क्या है, तो आपको इन ब्लैक एंड व्हाइट चित्रों से एक देन एंड नाउ का पर्सपेक्टिव मिलता है। तब और अब. और ऊपर तब और अब, देन एंड नाउ। और उस पर मैंने एक शेर लिख दिया कि कभी बुजुर्गों में मेरा चित्र भी होगा, क्या बात. कभी बुजुर्गों में मेरा चित्र भी होगा, अबे वो सीन कितना विचित्र होगा। कितना चित्र होगा. चलो, ग्रेट. अब अबे 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 शब्द कितने प्यार से लगाया गया है। हाँ, अभी उसने मैं कहा समझ गया. कभी आप भी मरोगे, आपकी भी फोटो टंगेगी, तो मैं उसको ह्यूमर के, सी, हमें अगर ह्यूमर को साथ रखना है, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। बिल्कुल. करेक्ट, करेक्ट. तो ह्यूमर अभिनव इज भाई, लाइक अब ह्यूमर इज लाइक दैट का सीटी। बिल्कुल, बिल्कुल. तो अभिनव भाई, थैंक यू, थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन क्यों घंटी बजी एंड ऑन द नवीन गिरी शो, और हम लोग मिलते रहेंगे. आपकी घंटी बजती रहे, मेरी यही दुआ है दिल से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड कैच अप सून. थैंक यू. एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू, एंड सबको बहुत बहुत बधाई।